बच्चों, तो let's discuss about some PYQs on motion and force. Okay, NDA PYQs, NDA related PYQs, practice questions. Okay, on motion and force. ठीक है, तो तैयारी अच्छे से चल रही है ना? सितंबर में एग्जाम आ ही गया, सितंबर 13 को एग्जाम है, तो तैयारी अच्छे से होना चाहिए. ओके, so see in the first question, consider the following statements regarding the motion of a particle. In uniform circular motion, the acceleration of the particle is always zero. Number two, in projectile motion, the horizontal component of velocity remains constant through the flight, neglecting air resistance. Okay, so let's see. In uniform circular motion, the acceleration of the particle is always zero. Okay, so see, in circular motion, there can be two possibility. In circular motion, if we talk about circular motion में दो possibility हो सकती. तो circular motion में अगर हम स्पीड के बारे में बोले, इफ यू टॉक अबाउट स्पीड, तो स्पीड क्या होगा? स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगा. ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पार्टिकुलर, ओके, यूनिफॉर्म है, स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो स्पीड सेम रहेगा. यस, पूरे जर्नी में स्पीड सेम रहेगा. सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म हो सकता है. ओके, सर्कुलर मोशन में स्पीड कैन बी यूनिफॉर्म. यस, स्पीड इज यूनिफॉर्म, but remember, if we talk about velocity is not uniform, velocity is not same, because in this point उसका वैल्यू तो सेम हो सकता है, लेकिन इस दिन इन दिस पॉइंट डायरेक्शन इज दिस, 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 इन एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज चेंजिंग. यस, in terms of velocity, in every point direction is changing, but value can be same. Yes, तो उस समय हम क्या बोल सकते हैं? स्पीड कैन बी यूनिफॉर्म इन सर्कुलर मोशन, बट वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग इन एवरी पॉइंट. ओके, तो अगर वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, ओके, वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, then if we find acceleration a equals to dv by dt, तो ये जीरो कब होता है? एक्सीलरेशन कब जीरो होता है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, तब a जीरो हो जाता है. लेकिन इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, वेलोसिटी चेंजेस, एंड अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कुछ आएगा. तो एक्सीलरेशन इज नेवर जीरो, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता. ओके, तो देखो, एक्सीलरेशन जीरो नहीं हो सकता. आया समझ? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में velocity is not constant. Okay. Statement: in projectile motion, the horizontal component of velocity remains constant throughout the flight, neglecting air resistance. तो यहाँ पे air resistance छोड़ने के लिए था. तो always remember वो दो बच्चों, always remember in projectile motion, okay, if this is u, initial velocity u, so there will be a component here. It will, if this is theta, this component will be u cos theta, and this will be u sin theta. Okay, yes. तो यहाँ पे इन दिस, फॉर दिस component, horizontal component, velocity or velocity component u cos theta is always constant, so acceleration is zero. Acceleration equals to zero. Okay, but for the vertical component u sin theta, acceleration equals to all minus z. Always remember. Okay, always remember. ये रख लो, ये याद रखो. Okay, so in projectile motion, the horizontal component of velocity remains constant. Yes, it is always constant. So 2 is correct, 1 is false. So answer will be 2 only, B only. Okay. Yes. Let's go for the second question. A block of mass m is placed on a rough inclined plane of angle theta. If the block is just on the verge of sliding down, the coefficient of static friction mu s between the block and the plane is equal to. So always remember, coefficient of friction is always tan theta. अभी कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं. ठीक है. So if this is the block, okay, if this is the block, this will be its mg weight. Okay, अभी ये अगर थीटा है, okay, this is the angle theta. Okay, mg weight, this is the weight of the block. Okay,
अभी देखो ये एंगल में है, इट इज मेकिंग एन एंगल, इसको अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली इमेजिन करें तो mg थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, यस mg ऐसा हो जाएगा, इसको अगर प्लेन को अगर हम हॉरिजॉन्टल करते हैं mg ऐसा हो जाएगा, यस ओके। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, we have to draw component, this will be mg cos theta, this will be okay, so this will be also theta, and there will be a component mg sin theta, okay, and always remember there will be a normal force opposite to the weight, yes हमको पता है ये हमने किया है, and frictional force will be this way, f friction. Now see what we can write, n equals to mg cos theta and f friction force due to friction equals to mg sin theta, okay, and remember f friction equals to mu into n, इसको याद रखें mu into n, ये फॉर्मूला याद रखें, ओके। नाउ पुट द वैल्यूज mg sin theta mu mg cos theta, अभी म्यू का वैल्यू चाहिए, mg विल बी कैंसिल, म्यू का वैल्यू आएगा तो cos इधर आएगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, ये रख लो, रिमेंबर रख लो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज tan थीटा, ये रख लो, ये हमेशा याद रखना, काइनेटिक हो या स्टैटिक हो, ओके यस। Two bodies having masses m1 and m2 possess equal kinetic energy, what is the ratio of their linear movement, okay, see kinetic energy is what, this much, ये हमको पता है, कैसे आया मत पूछना भाई लोग, ठीक है, ये हमको पता है, ओके। दिखाई देता हूँ, हाफ एम बी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, दोनों ऊपर m मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर 2m, तो अल्टीमेटली p स्क्वायर बाय m, ओके यस, ठीक है। तो हैविंग मासेस m1 एंड m2 पोजेस इक्वल काइनेटिक एनर्जी, सो e के e, तो 1 लिखते ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी सेम है, अभी बोथ साइड्स आर डिफरेंट, इसका मोमेंटम 1, इसका मोमेंटम 2, ओके, दोज आर सेम, सो p1 2 m1 p1 square equals to p2 square 2 m1 m2, p1 को p1 by p2 square, 2 2 will be cancel, so m1 ऊपर जाएगा, m1 by m2, रूट को हटाओ, p1 by p2 equals to रूट ओवर m1 by m2, तो कौन सा होगा ये, ठीक है, ये सब याद रखो, ओके, ये सब क्वेश्चन एकदम जनरलाइज क्वेश्चन है, ये सब पूरा याद रखो, समझ आया कैसे किया हमने, ओके यस, या इससे ही समझ आता है ना कि अगर फॉर्मूला ये है ना के इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला तो हमारा यही है ना, यही फॉर्मूला है, तो 2m m मास को इधर लाएंगे तो मास इनटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2, ओके। अभी देखो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है पी स्क्वायर का, मतलब पी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रूट एम, तो जहाँ पे रूट दिखाई दे वहां पे मान देना, P1 का क्या होगा, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m1, P2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट m2, ओके यस, या नंबर 4 क्वेश्चन, द एरिया अंडर ए फोर्स टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग बॉडी रिप्रेजेंट्स इट्स, ओके। अभी ऐसे क्वेश्चन में जस्ट जो दो क्वांटिटीज आ गए, ट्रिक ट्रिक बता रहा हूँ, जो दो क्वांटिटीज आ गए उनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वही होगा उनके ग्राफ के बीच का क्वांटिटी, फोर्स एंड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, if we multiply force and time, if we multiply force and time we will get impulse, yes impulse, that means change in momentum, so answer will be change in momentum, okay। अबे फोर्स एंड डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वर्क, तो फोर्स वर्क ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क रिप्रेजेंट करेगा, ओके यस। वेलोसिटी एंड टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, या दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ओके।
आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Consider the following statements about friction. Kinetic friction is always strictly less than the limiting friction. Rolling friction is generally much greater than the sliding friction. इसके लिए ये चार्ट याद रखो, आराम से हो जाएगा. ओके, इसके लिए चार्ट याद रखो, आराम से हो जाएगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन. फ्रिक्शन, ओके, फ्रिक्शन बार बार नहीं लिखूंगा. फ्रिक्शन. स्टैटिक के बाद आएगा लिमिटिंग. लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग के बाद आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक. काइनेटिक में पहले कौन आएगा? पहले आएगा रोलिंग, सॉरी स्लाइडिंग. स्लाइडिंग. और लास्ट में आएगा रोलिंग. तो सबसे सबसे कम होगा, सबसे कम किसमें होगा? सबसे कम होगा फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन. तो क्या किया ये याद रखना. ओके, रिमेंबर दिस. Kinetic friction is always strictly less than the limiting static friction. Kinetic friction is always strictly less. Yes, kinetic friction सबसे कम होता है static friction से. तो one तो correct है. Rolling friction is generally much greater than sliding friction. No, rolling friction is less, not greater. So second is not correct. So only one. Option A is correct. A gun of mass m fires bullet of mass m with a horizontal velocity v. According to the law of conservation of momentum, the recoil velocity of the gun v will be. Okay, तो बच्चों इसको इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यूज कर सकते हैं एंड वी कैन यूज लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ आल्सो. यस, फायरिंग अ बुलेट इज अ एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो इफ द मास ऑफ द गन इज m, वेलोसिटी इज v. ओके, सो इफ द मास ऑफ n, तो बुलेट को फायर करेंगे तो बुलेट आगे जाएगा, गन पीछे आएगा. यस, सेम फोर्स, दोनों में सेम फोर्स अप्लाई होगा बट ऑपोजिट. बुलेट आगे जाएगा, गन पीछे आएगा. यस, तो अगर इफ द मास ऑफ द गन इज m, मास ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, पीछे आने का वेलोसिटी v है, तो बुलेट में कितना आएगा? mv. बट कितना आएगा? ऑपोजिट mv. स्मॉल m इज द मास ऑफ द बुलेट, स्मॉल v इज द मास ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट. ओके, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट. ओके, तो दोनों इक्वल होगा बट ऑपोजिट. यस, तो अभी v का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा. v इक्वल्स टू माइनस स्मॉल m v बाय v. यस, कौन सा बोला? और उसका वेग क्या चाहिए? गन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन v विल बी. यस, v विल बी, ओ या सॉरी, m इधर आएगा ना, m. सो आया है हमारा v इक्वल्स टू माइनस m v बाय m. तो दिस वन, ऑप्शन बी. तो इसको थोड़ा एक होमवर्क दे देता हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को करेंगे. तो अभी ये करो कि इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको हम निकाल पाते हैं या नहीं. मैंने तो बोला दोनों तरीके से निकाल सकते हैं. बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये आता है या नहीं वो देखते हैं. वो करके लाना, वो करके देखना. अगर है तो फिजिक्स इज राइट. ओके, तो ठीक है बच्चों, अच्छे से प्रिपेयर करो. एग्जाम ज़्यादा टाइम नहीं है. ओके, तो ठीक है, तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय. अच्छे से पढ़ते रहो, एग्जाम अच्छे से क्लियर करना है. ओके, रिटन एग्जाम तो क्लियर करना ही. ओके, ठीक है, थैंक यू.